Your voice is not audible. नो सर, नो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आवाज आ रही है अभी? यस सर, यस सर, Yes, sir. चलो, so how are you? Fine, sir. So there were some technical glitches over here at Kharghar. ये कितनी बार रह लिया, ये सबने पढ़ लिया, देख लिया? अच्छा चलो देख लिया ना? भाई हम लोग कॉमर्स क्लासेस भी चालू कर रहे हैं, ये हटा लेंगे, हो गया काम, नीचे ले लो बस, एक दिन रखना। तो हम कॉमर्स क्लासेस भी चालू कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स तो प्लीज रेफर अस। अब इसके नीचे so there were some technical glitches, ये आज मैंने rectify करवाए। I don't know, they first said that there was a glitch in this router, but it was not a router glitch, it was something else. So we have 2 people absent. No, 3. Arya absent, Aryan also absent, and Krisha also absent. Are 3 of them absent? So Samarth is present, Aditya is present, Jasleen is present. We'll go straight, we'll not have a break in between, and we'll go straight direct. Manish? Chalo. Today what we would do is we would start with, I think last question answers अपने बचे हैं gender caste religion के, अपन वो question answers खत्म करेंगे, and once we finish those question answers then I'll start with economics. And today I'll start with, I think मैं मालूम करके आया हूँ, first chapter sir ने ले लिया? हाँ, so I would start with the second chapter, so I would finish economics. Okay, ठीक है, so I will pick it up from there, and जो भी बचा होगा वो complete करूँगा। I would start from the second chapter onwards. चलिए, let's get started. So very quick. ये पूरा देखना है। चलिए, let's get started with the agenda for today. Agenda for today would be basically a quick recall, and after that quick recall we will get into question and answers, and once we finish this we will get into economics. Eco, again there will be a small introduction. Introduction में we would do a non-NCERT introduction where we will try to understand, जैसे अपन ने political science को समझा था, we will try to understand economics होती क्या है. So we would get into ये वाला non-NCERT section होगा, non-NCERT, where we would understand the what and the why. What is economics and why are we studying economics? And then we would understand definition करेंगे अपन. उसके बाद we will start with sectors है या कौन सा वाला है? Sectors of Indian economy है. Sectors of Indian economy को हम पढ़ना चालू करेंगे. So उसके फिर मैं सब agenda लिखवाऊंगा. देखते हैं कितना खत्म होता है. So this is what we would do today. So this is the agenda for today. चलिए, let's get started with the quick recall.
चलिए सर आपसे चालू करते हैं, क्विक रिकॉल। वी आर डूइंग जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। खड़े होइए। जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, ये क्या है तीनों? व्हाट आर दे कॉल्ड? दीज आर सोशल ग्रुप्स। ओके, तो ये तीनों सोशल ग्रुप्स जो हैं इनका वेरी क्विकली, जेंडर इज अबाउट, करेक्ट, रिलीजन इज अबाउट, worship is God. हाँ, एंड कास्ट, Like God work with तो कौन सी 4 कास्ट हैं? Brahmins, Vaishya, Shudra, and Kshatriya. Correct, good, okay, that's good enough. So next, why are we studying these 3? ये 3 चीज क्यों पढ़ रहे हैं अपन सोशल ग्रुप्स? Problem जानने, ओके, क्या problem face करते हो, solution. हाँ, सो इसका कौन सी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से रिलेशन है इसका? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर देयर? 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कौन सी है फर्स्ट? Sir, first horizontal, second vertical, third social. सोशल ग्रुप्स, एंड फोर्थ अपन ने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट इट इज कोलिशन। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। करो, गुड, वेरी गुड, यू रिमेंबर दिस। सो नाउ स्टार्टिंग विथ जेंडर, व्हाट डिड यू स्टडी इन जेंडर? व्हाट डिड वी रियलाइज इन जेंडर? जोर से, आई डू नॉट। ओके, जेंडर वो पढ़ा अपन ने। दिख रहा है क्या सब लोगों को? आर यू एबल टू सी? Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को मैं इधर ज्यादा अच्छा दिखता हूँ समर्थ, या ये ऐसे भी रहता हूं तो अच्छा दिखता हूँ? Both the views are fine, so I can roam around this ना, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? No, चलो। sir. अब सर आप तो अच्छे दिखते ही नहीं, आप तो मोटे हो गए और बाहर भी चले गए आपके। हाँ बोलो बेटा। ओके, तो मैं जेनरिक नहीं पूछता, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक पूछता हूँ। हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर देयर इज इनइक्वालिटी इन मेन एंड वुमेन? देयर इज वन, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर या पैरामीटर है, वो कौन सा पैरामीटर है? क्या सीखा था आपने उस पैरामीटर का? क्या नाम है उसका? बताइए मैडम, क्या नाम है उस पैरामीटर का? चलिए, what is that called as? Sex ratio. What is it called as? Sex ratio. तो उसके बारे में अपन ने क्या सीखा हो जेंडर उसमें? It should be equal, but is it equal? तो वो जो इन जनरल बॉम्बे इंडिया का ग्राफ पे जो मैप देखा उसमें क्या देखा आपने? कहाँ पे वो? Sir, mainly in North Indian region. वहाँ पे वो क्या है, कम है ज्यादा है? So, comparison of male and female, males are in more number. Females are less. So sex ratio is about females. तो अगर मैं कम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब फीमेल्स कम है, ज्यादा बोल रहा हूँ तो मतलब ज्यादा। चलिए, तो ये मेल सेक्स रेशियो उस ग्राफ में, उस चैप्टर में क्या कैसा दिख रहा है? Which part of the country is okay, which part of the country is bad? Southern is comparatively okay. Okay से मतलब it is around 900. हाँ, between 900 and upwards है, तो that is green color. कौन सा कलर है? And the plains, the northern plains are about 800 to 900. और कम है तो Red color. तो it's red, orange, red, yellow, orange, red colors है. So इसकी वजह से what kind of problems happen? Crime against women, females are increasing. Crime against women, female का crime बढ़ रहे हैं. अपन ने कुछ तरह के ऑपरेशन सीखे. कितने ऑपरेशन सीखे? 6. करेक्ट. What are those 6? Can you name them? Education, फिर female feticide. मतलब एजुकेशन कम मिलती है. Education कम. फीमेल फीटिसाइड हम Then उनको equal wages. गोद में पेट में ही वुम में ही मार देते हैं. फिर unequal wages. इनइक्वल वेजेस. For similar jobs. सिमिलर जॉब्स मेल को ज्यादा मिलता है, फीमेल को कम मिलता है. फिर paid jobs में there are less females as Correct. compared to male. हाँ. फिर there is unequal sex ratio. फिर And finally crime against women. Very good. चलो ये समझ में आ गया. तो इसमें हमने क्या सोल्यूशन क्या निकाला इसका, कि इसका सोल्यूशन क्या है? यू कैन वॉलंटियर एंड टेल मी, अगर कुछ आपको आता है तो फिर आप बैठ पाओगे. फेमिनिज्म. ओके, तो बैठो, वो बोल रही है तो आपसे बाद में पूछेंगे. चलो, फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म
preferential for women. सही भैंस पानी में. Is it preferential for women? यही चीज में. Preferential for women. It is It is equal treatment for. बैठो. चलो नेक्स्ट हमने ये पढ़ा इसके बारे में. नाउ अब आपका टर्न आ गया. समर ऑनलाइन वाले टर्न आ गया. चलो बताओ मेरे को रिलीजन. रिलीजन को मैंने कैसे डिफाइन करा? व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज, मैंने क्या बोला था? रिलीजन क्या है? इज इट बिलीव? इज इट, क्या बोला था मैंने? way of life. इट इज. Way of life. समर्थ ने तो बहुत टाइम ले लिया. समर्थ तो कुछ बोल ही It नहीं is by रहा. both and not by choice. हाँ, एक तो सबसे पहले इट इज by birth, not by choice. It's a way of life, correct? And it is something which मैं ऐसा मानता हूँ. मतलब मैं ये टेक्स्ट बुक से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ. जो अभी अपन हिंदुस्तान में अभी देख रहे हैं जो झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े किस कारण से हो रहे हैं? चलिए इसके अंदर कौन और बोलना चाहेगा? आदित्य, वुड यू लाइक टू स्पीक अबाउट रिलीजन? हमने इसमें 2 शब्द सीखे. उन 2 शब्द में एक है शब्द कम्युनलिज्म और दूसरा शब्द है, बोलो आदित्य. नाउ योर टर्न. Secularism. Secularism. So can you define what is communalism? Unmute करके रखो. Define what is communalism and what is secularism. Communism is when a person is crazy over a religion. Correct. And He in thinks his secularism- own religion is the best religion. He's crazy over that. Communalism. So वो क्या करता है? What is his tendency? जल्दी जल्दी. Favors his religion over other He religions. favors his religion. He imposes his beliefs onto others. So should you encourage communalism or should you discourage? Okay. चलो next. Jasleen, what is secularism? Practice one's own religion in private. थोड़ा सा आपका कैमरा नीचे करो ना. आपकी नाक से नीचे आप दिखते नहीं हो. थोड़ा आपका कैमरा नीचे करो ना, so that we can see you much better. हाँ, that's so better. चलिए बोलिए, जोर से बोलिए. Sir, those who practice one's own religion in private. हाँ, मतलब हमने इसमें ये नॉन एनसीईआरटी एक टर्म लिखवाया था मैंने. क्या नॉन एनसीईआरटी टर्म लिखवाया था? लिव एंड लेट लिव. या जी और जीने दो. That is the best way to understand secularism. Not force. And do not force your own wish on somebody else. अब इसमें very quickly हम लोग के हिसाब से what is the way forward? What difficult a way forward? मैंने बोला कि नहीं बोला? The way forward is very. हर बार आपको, आप किसी को भी समझा बुझा के काम ये नहीं बोल सकते कि अभी जो हुआ लफड़ा, अभी क्या हुआ लफड़ा नुपुर शर्मा के साथ, उसके बाद क्या लफड़ा हुआ? एक तो उसको थ्रेट्स आने लगे, और क्या लफड़ा हुआ? ये मुसलमानों ने क्या करा? पत्थरबाजी करी. पत्थरबाजी करी तो पुलिस ने क्या करा? उनके घर जाके तोड़ दिया पुलिस ने. अब इसमें वापस लफड़ा हो रहा है. वो बोल रहे हैं अरे तुमको पत्थर क्यों फेंके तुमने? कुछ नहीं. आइए इधर आ जाइए. हाँ ठीक. हाँ, अब ये इतना डिफिकल्ट केस हो गया है कि ना किसी को भी कुछ बोल नहीं सकते. वो उस पे नाराज, ये उस पे नाराज, वो ये, वो मैंने बताया ना कि यार वो बोले कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो. इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और बीइंग. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. तो रिलीजन में वे फॉरवर्ड कुछ है क्या? वे फॉरवर्ड इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, कुछ समझ में नहीं. चलिए हो गया, ये समझ में आया. ऑल ऑफ यू हैव गिवन. नाउ लेट्स कम टू कास्ट. कास्ट में अपन ने क्या सीखा? 4 तरह की कास्ट तो किसी ने बता दी. नेक्स्ट हमने क्या कास्ट में, इज कास्ट प्रेजेंटली एन इशू? सोसाइटी में तो कोई इशू बट कहां पे इशू है? पॉलिटिक्स में इशू है. अगेन इज इट डिफिकल्ट? सॉल्यूशंस ऑफ यस्टरडे बिकम. चलो हो गया, ये क्विक रिकॉल हो गया क्या? एनी क्वेश्चंस? सारे अपन ने कार्टून्स भी कर लिए थे. हाँ चलिए, लेट्स ओपन अप योर टेक्स्ट बुक्स. लेट्स ओपन अप योर टेक्स्ट बुक्स. लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन आंसर्स. बैठिए मैडम, प्लीज पे अटेंशन. आप ध्यान अटेंशन पे करिए. ये सब चीजें, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको चैप्टर ऐसे सिखा दूं कि आपको वापस जाके पढ़ना ना पड़े. तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को बोलिए सर ये समझ में नहीं आ रहा, तभी आप आगे जाओगे. यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल. तो आपको जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक बेटा मजा नहीं आएगा. चलिए
Let's get started. कोई बचा था क्या? अपन ने सब कुछ कर लिया था? नहीं, कार्टून्स नहीं करे हैं। मेरे को कुछ कार्टून दिख रहे हैं जो नहीं करे हैं अपन ने। लास्ट में जो कौन सा वाला? लास्ट पेज वो भी कर लिया सिर्फ Q&A बाकी है। सब तक कर लिया? ये वाला कर लिया था? ये कहाँ पे बैठा है? गटर पे बैठा है? चलो ठीक है, चलो you get started with the first question. चलो start reading the question. mention different aspects of life in which women are discriminated or disadvantaged in India. हाँ, mention different aspects. तो ये question किसके ऊपर है? वो पहला वाला 6 ऑपरेशंस या जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये जो कार्टून है, हाँ, वो ऑपरेशंस प्लस दिस, करेक्ट? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. टू द टीवी मेकर दे मेक इट लाइक दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसको आपको वॉल्यूम में इसका पूरा, चलो वॉल्यूम खोलो, मैं इसका वॉल्यूम में आंसर दिखाना चाहता हूँ. गो थ्रू दैट बिकॉज ये सब बने बनाए आंसर्स हैं, तो इसको मैं बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ. यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. देखो मिल गया आंसर, वही ऑपरेशन वाला मिल गया. सो दिस इज द एनसीईआरटी आंसर. मिल गया क्या आंसर? चलो ये वॉल्यूम बंद करके रखोगे. यू वुड कीप द वॉल्यूम क्लोज्ड. आई डोंट वांट यू टू लुक एट द वॉल्यूम इनिशियली. हाँ, चलो नेक्स्ट. चलो आंसर सब बने हुए हैं, तो अपन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. चलिए आप बोलिए, क्वेश्चन पढ़िए दूसरा. State different forms of communal politics with one example. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब क्या होगा? कम्युनल पॉलिटिक्स अपन ने पढ़ा था ना, एक टॉपिक क्या पढ़ा था उसमें? रिलीजन इन पॉलिटिक्स वाला. तो उसमें क्या टेंडेंसी होती है? कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होगा? हाँ, वो वाला जो होगा ना नाम. इज इट अ नॉर्मल टेंडेंसी जहां पे वो बोलेंगे दे वुड यूज रिलीजन टू गेट मोर वोट्स? Because it's a human tendency. मुसलमान को वोट करेगा, हिंदू. अच्छा, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं? It starts by saying हाँ मैं हिंदू, ऐसे करके चालू होता है. मैंने वो एग्जांपल दिया था, रिमेंबर? सबसे पहले 1936 में इंडियन मुस्लिम लीग बनी थी. उन्होंने वोट अपील करना चालू करा, धीरे धीरे करके वो कहां पे जाके गंदा खत्म हुआ? Do you want that to happen again in the country? So इसका आंसर इज रिलेटेड टू दैट. डिफरेंट फॉर्म्स, इट कैन गो फ्रॉम देयर टिल द एंड. नाउ अपन ने उसके बाद से अपन ने प्रिवेंट कर रखा है कि अपन ने वापस ऐसा होने नहीं दिया. लेकिन सब कंट्रीज में ऐसा, कुछ कंट्रीज में तो यू विल सी एग्जांपल्स ऑफ यूगोस्लाविया, यूएसएसआर. वो यूएसएसआर अब है ही नहीं. ये यूक्रेन जिसके साथ अभी रशिया फाइट कर रहा है, वो उसी का हिस्सा. ये कोई बहुत साल पहले की बात नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s तक उसका हिस्सा था, आज से 40 साल पहले. और उसके करीब 70-80 साल पहले वो लोग यूनाइट हुए. और यही सब कारणों से ये लोग अलग अलग हुए. आप यूरोप को अगर ढंग से कभी पढ़ोगे तो यूरोप में तो वो एक, किसी ने सीरियल, तेरी मम्मी को सीरियल देखती थी ना, कौन सा देखती थी? गेम ऑफ थ्रोन्स, GOT. हैव यू हर्ड दैट वेब सीरीज? वो क्या है पूरा सीरियल? हाँ, बट वो क्या है वो सीरियल? इट्स ऑल अबाउट कि यूरोप में कैसे ये सब राजा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते थे. गेम ऑफ थ्रोन्स. यूरोप में ये लोग एक दूसरे से इतने लड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं. एंड क्यों लड़ रहे हैं? ये कम्युनल पॉलिटिक्स, वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स, किसी ना किसी इसी फॉर्म पे लड़ते हैं. तो इनमें पार्टीशन हो के अलग होता है. वो छोटे छोटे पार्टीशन. आज यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? अरे वो अलग हो जाएगा तो वो अलग, वो क्या कह रहा है? चिल्ला रहा है मेरे को सपोर्ट करो तुम लोग बाहर, क्योंकि ही डजंट हैव इनफ सपोर्ट. वो अकेला जिंदा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन. नहीं. स्टेट हाउ
caste inequalities are Caste inequalities are still continuing. Are there caste inequalities still in India? मतलब अर्बन इंडिया में नहीं है, रूरल इंडिया में देखने को मिलती है। आप टेक्स्ट बुक में अगेन इसका आंसर मैंने उतनी डिटेल में नहीं किया है, आप वॉल्यूम में पढ़ोगे तो वॉल्यूम में इसका आंसर फ्रॉम द कास्ट इनइक्वालिटीज अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, द कास्ट ग्रुप्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन, वो सब कुछ आपको आंसर मिलेगा और वॉल्यूम में इसका आंसर बहुत ढंग से हैंडल किया है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज अ डिटेल व्हिच आई डिड नॉट हैंडल इन द क्लासरूम, बट इसको पूरा आपको मिलेगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स स्टिल प्रेवलेंट इन द कंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं ही बोलता हूं। स्टेट टू रीजंस टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स। गाइस ये ना पॉलिटिशियन सोचते हैं कि हम कास्ट को अपील करेंगे तो हम जीत जाएंगे, क्या हर बार ऐसा होता नहीं होता। ऑल्दो मैंने भी बोला आपको कि ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देगा, क्षत्रिय क्षत्रिय को वोट देगा, लेकिन क्या हर बार ये ट्रू होता है? अभी इस बार के चुनाव की बात कर लो, 2000 जो ये जो कौन आदित्य योगी आदित्यनाथ जो जीते यूपी में, देयर वाज लॉट ऑफ बहुत सारे ऐसे हुए थे कि यादव यादव हो गए हैं तो वो लोग उनको वोट दे देंगे, ये हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, वो जीत गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगेन इसकी एग्जैक्ट एनसीईआरटी आंसरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आई एम स्किपिंग दैट। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज? ये तो मैंने बताई है, वो अपन ने करी थी ना टेबल एक, कि सेंटर में कितना है, स्टेट में कितना है और लोकल में कितना है। डिड यू डू दैट? यस और नो? लोकल में वी केम टू अबाउट 44% के आसपास आए थे, आया ना? या आप लोगों के साथ करा था या नहीं करा था? आपके नोट्स में देखो, मैंने नोट्स में लिखाया था, नोट्स में मैंने परसेंटेजेस लिखाई थी। एक्सप्लेन करके बोला था। हाँ लिखा है। अपन ने इसे गूगल से नहीं पूछा था क्या? नहीं सर, आपसे ही पूछा। 48% reservation हाँ नहीं नहीं वो नहीं, मैंने गूगल से नहीं पूछा था। देखो उधर परसेंटेजेस कुछ अलग मिल सकती हैं, गूगल पे अगर अपन ये अब अपन गूगल से पूछते हैं परसेंटेज। मैंने शायद ये दूसरे बैच में मैंने ना गूगल से परसेंटेजेस पूछे। चलो इधर पूछते हैं। What is the total number of women in local government in India? चलो ये क्या दिख रहा है नंबर? 3 मिलियन में से 1.3 मिलियन आर वुमेन। कितने? 3 मिलियन में से लोकल पे कितना है? 1.3 आउट ऑफ 3। यस और नो? और 1.3 आउट ऑफ 3 कितनी परसेंटेज हो गई लोकल पे? 33%। कैलकुलेटर 40 से ऊपर हो गई ना? कैलकुलेटर कुल वजन होगी 1.3 डिवाइडेड बाय 3, 43.33%। 43.33% लोकल पे इतना है। अब स्टेट पे देखने की कोशिश करते हैं। नहीं वो बढ़ गया बेटा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन स्टेट गवर्नमेंट?
ये टोटल नहीं दे रहे हैं। देखो ये क्या दे रहा है, दिख रहा है क्या? अरे तुम लोग को ये दिख रहा है वॉट एवर वी आर डूइंग? No, sir. तो तुम लोग को ये दिखे इसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? हाँ तुम लोग को तो दिखे बेचारे बच्चे, तुम लोग बोलते क्यों नहीं है यार तुम लोग? हाँ ये बंद करो। वैसे आप एक बार शॉर्ट Basic. It's wrong. Basic. नीचे दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अरे वाह, जोर से आवाज है। देखो इसमें तो कितना खराब आया है, लोकसभा राज्यसभा में कितना है? तो मतलब सेंटर पे तो सिर्फ 10% ही है। स्टेट का अपन को मालूम नहीं, अभी स्टेट का अपन को देखना पड़ेगा, स्टेट का वी डोंट हैव अ फिगर। तो सेंटर पे कितना है? सिर्फ 10 to 11% ही है, ये सुनो। अब स्टेट का वो देखो कितना है, 8 है, 4 है, 12 है, 14 है, 7, 11, 9, 1, कुछ में तो बहुत ही कम है, बहुत पुअर है। बाप रे, तो इज इट वेरी पुअर? ये सुनो, करेक्ट। तो ये तो शायद मतलब बिटवीन 5 to 10% के आसपास यही है, यस और नो? करेक्ट। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इज इट वेरी बैड? इसको तो हमने इंप्रूव कर दिया था थ्रू दैट गवर्नमेंट, वो फेमिनिस्ट। इधर अपन ने फेमिनिज्म अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे फेमिनिज्म अप्लाई, तो ये काफी पैथेटिक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब ये बोर्ड नहीं दिख रहा होगा ना तुमको, अब तुमको बोर्ड दिखाते हैं। अब अपन एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो ये Yes, हमने sir. इधर लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। Next, mention any two constitutional provisions that make India a secular state. Which are the constitutional provisions? ये again volume खोलो, and volume में लिखे हुए two constitutional provisions which make India a secular state. क्या है वो दो? There is no official religion. There is no, and Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice, and propagate any religion or not to follow it. Are you understanding? So we don't have any official religion. अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। आपने वो यूएस में एक हॉलीवुड की एक मूवी देखी है, बहुत अच्छी, क्रिसमस के ऊपर एक मूवी आई थी, तेरे को याद है? तेरे को दिखाई थी नहीं पर इन गॉड वी बिलीव, ऐसा एक इट इज अ वेरी गुड। मैं अगेन इसको क्या करूं, बंद करूं और फिर इन लोगों को वो दिखाऊं ना। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, बेसिक, ये तो अब इसको करा हाइड। यहाँ पे क्या नाम था उस मूवी का? अच्छा, यूएस करेंसी नोट इमेज। इसका उल्टा साइड किधर आएगा? So left one is back side. It's on White House.
Exactly. Yeah. That's it. एक second. In God we trust आ गया. हाँ ये देखो in God we trust, ये देख रहे हो, पढ़ रहे हो आप लोग? ये मेरे को सर नोट पे दिखा नहीं है, बट ये दिखा नोट पे, यहाँ पे in God we trust दिखा. Now what I am trying to say is US as a democracy, US as a does not have, or yeah, rather does have an official religion, Christianity. But in India we don't have an official religion. Are you understanding this? अब इधर ये इनके नोट पे छपा हुआ है, ये इन गॉड वी ट्रस्ट, ये मैं निकालने की दिखाने की कोशिश कर रहा था. नहीं, but here they have an official religion. In Jesus. Right, but they have an official religion. फिर इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी एक उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ी केस हुआ था, वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसकी थोड़ी सी, मेरे को याद नहीं रहते हैं ये सब चीजें, तो बट मैं एक सांता क्लॉज के ऊपर किसी ने केस फाइल कर दिया. नहीं मतलब कि सांता क्लॉज ये क्यों बच्चों को किया जाता है, तो सांता क्लॉज, मेसीज ने ये केस फाइट किया. मेसीज वहां का डिपार्टमेंटल स्टोर है, और मेसीज हर बार दिसंबर में क्रिसमस में सांता क्लॉज रखता था, और बच्चे, तो एक पेरेंट ने मेसीज के अगेंस्ट कि तुम बच्चों को, हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाते हो ये सांता क्लॉज का, और मेसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया. तो मेसीज ने बोला कि भाई अब ये सांता क्लॉज हम कर रहे हैं, तो उनके लॉयर ने एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो कुछ पे चलता है. तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर लिया था कि हम लोग एज अ डेमोक्रेसी भी हम क्रिश्चियनिटी के गॉड पे ट्रस्ट करते हैं. अब ये भी तो पता नहीं कौन बोलता है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे करके, तो मैं आज क्या केस बोल रहा हूं, ऑफिशियल रिलीजन ऑफ यूएस इज क्रिश्चियनिटी, बट वी डोंट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन. आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. So they have, see, let's understand their constitution. Their constitution is having the second clause, but they don't have the first clause. अपने constitution में दो clause हैं ऐसे कि जहां हम कह रहे हैं हमारा कोई official religion, वहां का है official religion हमारा Christianity है. आपको करना है तो करो, और आपको नहीं करना है तो can you profess any religion in that country? Yes. They do not stop you from professing any, but the official religion of that country is. So we are a one step forward from them, where we said that we do not have an. तो इसकी वजह से इंडिया में काफी गड़बड़ी भी हुई है अभी. अगर आप पढ़ोगे, अगर आपको अभी थोड़ा सा 2 मिनट इंटरेस्ट है, ये चीजों में ज्यादा मजा आता है, तो जवाहरलाल नेहरू अभी रिसेंटली जब राम जन्मभूमि का एक उद्घाटन हुआ, तो डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ गो एंड डिड दी परफॉर्म दी पूजा? देखा था कि नहीं देखा था? अयोध्या में राम जन्मभूमि के उसके ऊपर कौन गए थे? प्राइम मिनिस्टर. ही वाज द ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने जाके खुद ने वो पूजा. A lot of people objected कि भाई the state does not have an official religion, then why is the prime minister going and doing puja as the prime minister of the country? इधर आके चुप हो गए थे सब लोग. Now नेहरू जी जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो नेहरू जी ने बोला था मैं नहीं आऊंगा उसमें. As a prime minister I would not oversee or this. उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट है
आपको चाहिए तो ये गूगल में पढ़ना। सोमनाथ मंदिर inauguration, Nehru, and who was the first president of our country? राजेंद्र प्रसाद। हम लोग को कुछ भी याद नहीं रहता है यार। Why Jawaharlal Nehru disapproved Rajendra Prasad's presence at Somnath temple inauguration? आप इसको पढ़ोगे ये आर्टिकल को, ये आर्टिकल क्या कह रहा है? तब जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को मना कर दिया था आप उसको टेंपल को इनॉग्रेट करने, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट द स्टेट डज नॉट हैव अ ऑफिशियल रिलीजन। तो जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने यही आर्गुमेंट दिया जो आपने अभी दिया, माय रिलीजन इज हिंदुइज्म, सो माय कॉन्स्टिट्यूशन gives me the second में gives me the power to do whatever I want to do for my religion। तो वो गए थे। तो आप ये सब चीजें पढ़ोगे तो you will realize all of this। चलो समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। Let's move on। How can the PM approve or disapprove anything that the president has? He doesn't have that right. But PM was superior power. नहीं, okay, good। So good question, good question। आपने ये legislative, executive और judiciary में पढ़ा है। We have given executive powers to the prime minister। So इसके अंदर ये बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी को रोका था कि you cannot go there, but the constitution does not give the power to the PM कि प्रेसिडेंट अपने किसी भी सेरेमोनियल फंक्शंस में प्राइम मिनिस्टर से पूछ के जाएंगे या पूछ के नहीं जाएंगे। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में उनको पीएम की बात माननी होगी। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस प्रेसिडेंट अपने मन से ले, लेकिन सेरेमोनियल फंक्शंस में द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड, ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। ही डिसाइड्स कि कौन से फंक्शन में जाना है, कौन से फंक्शन में नहीं। ये भी डिबेट हुआ। So this is how, so this is so beautiful about a democracy। अपन किंग सिस्टम से अलग हुए हैं। देखो अभी भी क्या हो रहा है, आप देखेंगे अभी जो डिबेट चल रहे हैं, आप रोज पढ़ रहे हो कि पढ़ रहे हो कि जब ये उन्होंने वो किसने जाके मंदिर बोल रहा हूँ, ये घर तोड़ दिया वो मुसलमान आदमी का, तो आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आवेदन लगा दिया। बिकॉज हम लोग, अगर आप पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ोगे, उसमें एक क्वेश्चन था, क्या कम कर दी पावर शेयरिंग ने? आर्बिट्रीनेस। रिमेंबर वो अपन ने बात करी थी, आर्बिट्रीनेस क्या था? रैंडमनेस। यस और नो? आज ये योगी आदित्यनाथ का मन करा तो उसने इसका घर गिरा दिया। क्या योगी आदित्यनाथ डू दिस? उसने गिरा तो दिया है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेबल टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ रहे हैं कि आपने इनका घर, तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी करी थी और उन्होंने पहले से बोल रखा था कि जिन जिन लोगों के, जो लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो बदमाशी करते हैं, उनको अगर उन्होंने अवैध घर बना रखे हैं तो उनको तो पहले से नोटिस देके रखो। तो द कानून सेज, द लॉ सेज कि आपको किसी का घर गिराना है तो पहले उसको नोटिस दो, टेल हिम कि भाई हम, आपने ये गड़बड़ काम कर रखी है। तो योगी आदित्यनाथ ने इन सब क्रिमिनल एलिमेंट्स को एंड ही हैड टोल्ड द पुलिस, मेरे को एक भी ऐसा आदमी गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि जिसको तुमने नोटिस नहीं दे रखा। अब उन्होंने हर किसी आदमी का घर, ये 10 आदमियों ने गड़बड़ करी, 10 में से ये जो 2 थे इन्होंने अवैध निर्माण कर रखे थे, बाकी 8 ने अवैध निर्माण, तो आपका घर को कुछ नहीं करा, इनका अवैध निर्माण थे, इनको ऑलरेडी 2 महीने पहले से। अब ये कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, तो लड़ नहीं सकते।
He's followed the due course of law. Are you understanding? Yes. तो ये पावर शेयरिंग का वो पार्ट है वो सीख रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं. अरे अभी अपन को बोर्ड को लगाना है ना. शेयर स्क्रीन एडवांस्ड. चलो लेट्स गो टू द बोर्ड. When we speak of gender divisions, अच्छा कौन बोलेगा? सर आप खड़े हो, ये वाला आंसर आप बोलो. When we speak of gender divisions, we usually refer to which ones? बोलो. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ो जोर से. बोलो true or false? क्या पढ़ रहे हो? क्या सुन रहे हो? चलो मैडम पढ़ो. When we speak of gender division में हम आदमी और औरत के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं. सेकंड पढ़ो. Are we talking about unequal roles assigned by the society to men and women? Are we referring to unequal child sex ratio? Yes. Yes. Next, absence of voting rights for women in democracies. नहीं, जेंडर डिविजन्स में दूसरी डेमोक्रेसीज में हो एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल को छोड़ के सबकी बात करते हैं. यस और नो? आया समझ में? बैठिए. बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है? बैठो. बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है? Between men and women, biological differences. Men have women have breasts, men do not have. Are we talking about these differences? No, we are not talking about. Women can bear babies, men cannot bear babies. Are we talking about these differences? We are not talking about these differences in this class. Those are in the biology class. हम तो conflicts क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि men and women are being treated unequally. Because are we talking about biological differences कि women में power कम है, men में power ज्यादा है? Are we talking about this? समझ में आया बेटा biological differences? बेटा चलो आपका टर्न. In India, seats are reserved for women in. कहाँ पे reserved है? बोलो पढ़ो 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 जोर से. हाँ. In Lok Sabha? No. State legislative assemblies? No. Cabinets? No. Panchayati Raj bodies? Yes. Okay. Next. Saina आपका टर्न आ गया. Consider the following statements on the meaning of communal politics. Communal politics is based on the belief that, is it based on the belief that one religion is superior to that of others? Communal politics. Yes. Communal politics. आया ना? Yes. Communal politics is all about मैं हिंदू, मैं मुसलमान. So next वाला पढ़ो. That people belonging to different religions can live together happily as equal citizens. Communal politics is not based. Correct? Next, followers of a particular religion constitute one community. Yes. Communal politics वाले यही सोचते हैं कि सारे हिंदू एक जैसे अच्छा रहेंगे. अच्छा, ये वाकई में सही है क्या कि सारे हिंदू अगर एक साथ हो जाएंगे तो वो स्थिर रहेंगे? नहीं, ये इट्स अ रॉन्ग थॉट. सर कुछ और ढूंढ लेंगे. हाँ, कुछ और ढूंढ लेंगे. आज मेरे घर में मैं अनुज, इसकी मम्मी, उसका बड़ा भाई. Do we all think very differently? Yes. हम लोग सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम एक जैसा खाना पीना खाते हैं, एक ही रिलीजन है, बट आर वी ऑल फोर ऑफ अस सेम? ये एकदम अलग सोचता है, मैं एकदम अलग सोचता. तो ये थॉट है ना, ये थॉट ही अपने आप में गलत है कि कई लोग है ना अभी जो टाइम पे मुसलमानों को सबको ना उसी टाइम 1947 में अलग करके भेज देते ना, तो आज हाँ बहुत अच्छा होता, फिर अपन पीसफुली रहने होते. I don't believe in that concept. I do not. क्यों? सबके थॉट्स डिफरेंट. हाँ, गड़बड़ किधर है? देखो अब उस टाइम वो नहीं होते तो कोई और रेडिकल एलिमेंट्स आ जाते. Are you understanding this? आपको तो सिस्टमैटिकली सोसाइटी में से रेडिकल एलिमेंट्स को हटाना, मतलब
एजुकेट करना है, बता तो नहीं सकते। रेडिकल एलिमेंट्स को एजुकेट करना है, उनको सही राह दिखानी है, बिकॉज बहुत डेंजरस है, ये सुनो। चलो आगे फोर्थ वाला पढ़ो। State power cannot be used to establish the domination of one religious group over others. Communal politics is based on the belief. Which one is correct? State power cannot be used to establish the domination of one religious group over others. Communal politics तो इनफैक्ट उस पे बिलीव करती है कि स्टेट पावर को यूज करना चाहिए। फॉल्स हो गया ना? A or C. A और C दिया। चलो ठीक है, समझ में आ गया। चलो बेटा आपका टर्न। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जोर से। Which among the following statements about India's constitution is wrong? It prohibits discrimination on grounds of religion. पहले प्रोहिबिट का मतलब बताओ। बताओ यार, तुम्हें वैसे क्यों देख रही है? प्रोहिबिट का मतलब बताओ। प्रोहिबिट का मतलब बैन करना, रोकना। प्रोहिबिट्स मतलब रोकता है। प्रोहिबिट मतलब तो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। यस, वेरी गुड। मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब इसको अच्छा बोलता है, इसको गलत बोलता है, इसको अच्छा बोलता है, उसको गलत। करेक्ट? ये मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, ये मेरे को गंदी लगती है। कोई बेसिस हो सकता है? करेक्ट? ऐसा भेदभाव करता है। तो हम कह रहे हैं प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अगर कोई भी रिलीजन के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट करता है, ऐसी प्रैक्टिस को रोकता है। Which of the following statements about India's constitution is wrong? Is wrong. Does it prohibit? It does prohibit, so it's not wrong. It's not wrong. So next follow. Gives official status to one religion. False. It is wrong. It is wrong. It is wrong. आया ना? ये उल्टा हुआ। Next C पढ़ो। Provides to all individuals freedom to profess any religion. It does protect. तो wrong नहीं हुआ ना ये? Correct? Last वाला। Ensures equality of citizens within religious communities. ये भी करता है। Wrong नहीं है। हमको तो wrong ढूंढना है इधर, हमको right नहीं ढूंढना है इधर, हमको wrong ढूंढना है। तो wrong कौन सा हुआ सिर्फ? चलो अब समर्थ आपका टर्न आ गया। 11th वन वाला पढ़ो। Yes, sir. Social divisions based on dash are peculiar to India. बोलो बजरंगबली की जय। समर्थ? Caste, हाँ वो है, लेकिन वो तूने क्या शब्द का प्रोनाउंसिएशन किया रे बेटा? अंग्रेजी है। बोल वापस से बोल। पिक्यूलियर, वो क्या है शब्द का राइट प्रोनाउंसिएशन? हाँ बेटा, पिक्यूलियर। तुम लोग सब लोग कोविड में है ना, तुम लोग सब लोग तो एक्चुअली रीडिंग करनी चाहिए बेटा। चलो कास्ट। हाँ, ये कास्ट डिफरेंशिएशन क्या आपको दुनिया में और कहीं पे मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? Hindus are largely prevalent only in Hinduism. Now this is interesting. Hinduism na is one of the oldest religions of the world. और ये पहले बहुत जगह फैली थी। अशोका से पहले अशोका ने हिंदुइज्म नहीं फैलाई थी। अशोका ने क्या फैलाई थी? बुद्धिज्म। तो अशोका के बाद से ही ये चलन खत्म होने लगा। पहले ये सब चाइना, थाईलैंड और ये सारे जो थे, इधर सब जगह क्या था? हिंदुइज्म था। इंडोनेशिया, सुमात्रा और वो सब जगह ये सब क्या था? बाली और इधर सब जगह हिंदुइज्म था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हिंदुइज्म समेटने लगा। वो पूरे एरिया में क्या फैल गया? बुद्धिज्म फैल। और फिर और कुछ फैला और कुछ फैला, फिर ये इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, ये सब आ गए, जूडिज्म आ गया, ये सब आ गए। तो हिंदुइज्म सिमट के कहां रह गया? लार्जली इंडिया में ही है। अब कास्टिज्म किसका फीचर है? हिंदुइज्म का। इसकी वजह से सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन कास्ट आर पेक्यूलियर ओनली टू इंडिया। ऐसे सिमिलर डिवीजन आपको अमेरिका में या अफ्रीका में किसके दिखते? बिटवीन
ब्लैक एंड व्हाइट ऑन कलर स्किन पे। जो हम जैसे हम कास्ट डिविजन्स करते हैं, हम कास्ट डिविजन्स में क्या करते हैं, शूद्र को अनटचेबल ट्रीट करते हैं। हाँ कि देखो छू लिया तो बाबा मेरे को अब नहाना पड़ेगा, ऐसा जो काम करते हैं ये ब्लैक्स एंड व्हाइट्स में। वहां पे a similar division happens but that's based on color, that's not based on caste. चलो नेक्स्ट जसलीन आपका टर्न बेटा, मैच दी कॉलम पढ़ो। Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. चलो पढ़ो लिस्ट 1, फर्स्ट वन पढ़ो। A person who believes in equal rights and opportunities for women and men. व्हाट इज दैट आंसर? वन का क्या है? Feminist. फेमिनिस्ट, करेक्ट, सिंपल है बहुत। चलो सेकंड वाला पढ़ो। A person who says that religion is the principal basis of a community. क्या है वो? Communist. कम्युनलिस्ट। तो इतना क्यों घबरा रहे हो आप? चलो लास्ट आदित्य, लास्ट के दो आप पढ़ के बताओ। A person who thinks that caste is the principal basis of community. Caste. कास्टिस्ट, ठीक है। Caste. नेक्स्ट पर्सन 4। A person who does not discriminate others on the basis of religious beliefs. सेक्युलरिस्ट, उसको अनम्यूट करेंगे, म्यूट करने की इतनी जल्दी है, हम बोल के पहले ही म्यूट कर दिया अपने आप। ठीक है, इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? चलो नाउ वी आर डन विद जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, सो वी आर डन विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो ये पूरा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स। अरे एक सेकंड, बिफोर वी मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स, ये मैंने वॉल्यूम के गो थ्रू नहीं करा। प्लीज गो थ्रू दी वॉल्यूम, मेरे साथ वॉल्यूम का गो थ्रू करो, बिकॉज़ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप मेरे साथ पेजेस फ्लिप करते हो तो। चलो वॉल्यूम का पहला वाला पार्ट, इज एवरीबॉडी ऑन पेज नंबर 68 ऑफ द वॉल्यूम? वॉल्यूम का पेज नंबर 68 पे आ जाओ। चलो, डिड वी डू सेक्सुअल, वो मैं चैप्टर मैप पे हूं, इज एवरीबॉडी विद मी ऑन द चैप्टर मैप? सब लोग हैं? पेज नंबर 68 पे आओ। कहां है आपकी वॉल्यूम? That's bad. चलो ये देखो ऐसे। चलो गो थ्रू दी वॉल्यूम। चलो जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, क्या ये हमने करा? नेक्स्ट, डिड वी डू पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस एंड वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? डिड वी डू ऑल ऑफ दैट? कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म पढ़ा। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इनइक्वालिटीज, फिर कास्ट सिस्टम एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। चलो पेज नंबर 68 पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये पढ़ा था हमने। डू यू फाइंड एनी सब टॉपिक जो आपको अनफेमिलियर दिखे तो मेरे को टोकना वहीं पे ही। तो पेज नंबर 68 पे सारे सब टॉपिक्स फेमिलियर दिख रहे हैं? पेज नंबर 69 में डिड वी डू फेमिनिज्म? चलो टर्न करो, फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दिख रहे हैं उधर, तीन तरह के, एजुकेशन, प्रोपोर्शन, वेज इनइक्वालिटी। पेज नंबर 70 पे डू यू सी द रिमेनिंग 3? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया हमने, है ना? सेंटर, स्टेट और उसकी। चलो नेक्स्ट, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है, क्या थिंकिंग होती है, डिड वी अंडरस्टैंड दैट? पेज नंबर 71 पे वो सब के सारे पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं? एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। दिस इज व्हाट यू विल राइट इन दी। जो मैंने आपको सिखाया, पढ़ाया, मम्मी की खिचड़ी, वो सब नहीं लिखोगे। वो काहे के लिए सिखाया था? टू अंडरस्टैंड, दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो पेज नंबर 72, लिमिटेशंस ऑफ कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म आ गया समझ में? डिड वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म? चलो पेज नंबर 73 पे कास्ट, डिड वी टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम? पहले क्या था और मॉडर्न कास्ट सिस्टम क्या है? डिड वी डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन द क्लास? फिर प्रिविलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, ये सब कर लिया। फिर डिड वी डू वेरियस फॉर्म्स एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट? डिड वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन पेज नंबर 74 एंड 75? हां, अच्छा। Did we do this analysis of case studies? ये वाला जो केस स्टडी था, कौन सा केस स्टडी था ये? कौन सा था ये केस स्टडी जो दिया गया? This is not a case study. This we did when we were going through the NCERT. Asian equality, caste inequality.
caste inequality और एक pie chart social and ठीक है, चलो तो ये ठीक है, ये डेटा है, यू कैन इग्नोर दिस, चलो ठीक है। तो ये टर्म्स देख लिया आपने। डू यू सी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आप अगर एग्जाम में पढ़ रहे हो, आप सोशल स्टडीज में अगर ये प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस को देखोगे तो हमने पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चंस एक जगह डाल दिए। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपने सबको जाना। फिर एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस को आंसर करा हुआ है, आया समझ में? चलो वॉल्यूम हो गई। देन आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो सब है, वो यू कैन डू इट योरसेल्फ, और वो सब करा हुआ है। चलिए ओके। सो गाइस, आई होप सोशल स्टडीज की वॉल्यूम, यू नो, आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय सोशल स्टडीज वॉल्यूम। आप लोग भी देखिएगा एंड डू गिव अस अ क्रिटिकल फीडबैक ऑफ हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम। अच्छी बुरी कैसी लगती है, लेट अस नो। बट समहाउ आई थिंक कि वॉल्यूम काफी अच्छी करी हुई है, इट इज प्रीटी वेल डन, तो आपके लिए ज्यादा इजी होनी चाहिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अपन क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन बात करेंगे, व्हाट व्हाई बात करेंगे, डेफिनेशन। और इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ते हुए कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गया। यू स्टार्टेड लास्ट ईयर इन 9th स्टैंडर्ड। तो अगेन जैसे मैंने पॉलिटिक्स की चालू करी थी कि फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। कोई वॉलंटियर करेगा? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कोई समझाएगा कि आपको क्या समझ में आता है इकोनॉमिक्स के बारे में? अपन ने जैसे पॉलिटिकल साइंस करा, अगेन दिस इज ऑल नॉन एनसीईआरटी है। शुरू में मैं टॉपिक में घुसूंगा थोड़ी सी देर में, पहले अपन नॉन एनसीईआरटी करेंगे। चलो इकोनॉमिक्स, कैन समबडी टेल मी क्या है इकोनॉमिक्स? अगेन everything related to or somehow related to finance. again muddled understanding related to finance. Bolo. Sir, we have completed this chapter. Only division of sector is remaining. हाँ बेटा, मैं तो अभी इकोनॉमिक्स का इंट्रो कर रहा हूँ। मैं अभी वो चैप्टर में तो बाद में आऊंगा, पहले मैं अभी सबको, जैसे तुमको पॉलिटिकल साइंस सिखाई थी ना, पॉलिटिकल साइंस में क्या बताया था? व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? डू यू गाइस रिमेंबर? अब कोई पूछेगा पॉलिटिकल साइंस क्या, तो क्या बोलोगे? इट इज द साइंस ऑफ रिजॉल्विंग ह्यूमन Conflicts. कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई ना? तो हम पहले, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो करें कि इकोनॉमिक्स होती। चलो बताओ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की? चलो समर्थ बताओ इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग। He said something to do with finance. He was like something to do with finance. बोलो। अच्छा पहले जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे हाथ नहीं उठे थे, इकोनॉमिक्स कितने लोगों को अच्छी लगती है? Nobody. एक ही हाथ है बस। So you know it's so tough. इधर भी कोई हाथ है, समर्थ का हाथ है, और बाकी सब ऐसे। तो मतलब you know, try to imagine my position कि मैं तुम 15-16 बच्चों को टॉपिक पढ़ाना चालू कर रहा हूँ where you are not interested in that subject. अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मजा आता है या नहीं आता है? तो इकोनॉमिक्स की क्लास में भी मजा आएगा, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा ना। बिना मजा आए पढ़ाने का मतलब नहीं है मेरे को तो, करेक्ट? चलो तो समर्थ, कैन यू हेल्प अस? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? आपको क्या समझ में आता है? आपके लिए तो इंटरेस्टिंग है, काफी दूसरे बच्चों के साथ वही टक्कर है कि अलग दूसरे सब बच्चे, जैसे इसने भी हाथ नहीं उठाया, सो यू पहले तो जिन्होंने हाथ उठाया उनसे समझने की कोशिश करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। चलो ठीक है, कुछ तो मिला मेरे को। फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, Developing in urban and rural areas. डेवलपमेंट, जो भी आप बोल रहे हो मैं लिखता जा रहा हूँ। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत Study of activities involving रूरल एंड अर्बन। इधर किसी ने कुछ बोला, स्टडी ऑफ एक्टिविटीज, activities involving money. एक्टिविटीज involving money, close, good. समर्थ, would you like to add? जसलीन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये किधर गई जसलीन? जसलीन ने अपना ये वीडियो बंद कर दिया। Related to business and money. Related to business and money, money, business। तो अच्छा, इसमें से मेरे को क्या समझ में आया? चलो बस बहुत हो गया। अब मेरे को क्या समझ में आया कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर, जैसे ही पॉलिटिक्स जैसे हिसाब है। अरे बेटा पानी का गिलास ला के मेरे ऊपर से 2 गिलास।
हाँ, इट इज रिलेटेड टू, मतलब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर नहीं। तो अपन सबसे पहले, जैसे अपन ने पॉलिटिक्स में करा, अपन सबसे पहले इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करें, और अपन ये दो फंडामेंटल क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। कौन से? व्हाट एंड व्हाई, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस को सॉल्व करने की कोशिश। इकोनॉमिक्स क्या है, और इधर मैं थोड़ी सी टॉप डाउन अप्रोच लूंगा। मैं एक्चुअली आपको सबसे पहले समझा दूंगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, रादर देन उल्टा बिल्ड करने के। आई वुड गो द रिवर्स, आई वुड एक्सप्लेन यू व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड देन नीचे आऊंगा। इकोनॉमिक्स इज, ये सब मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि ये सब नहीं, बट ये सब क्या है? These are muffled understanding. ये exactly core definitions नहीं है. These are not core. These are not core definitions. These are not core definitions. So let's understand the core definition. Core definition is, चलो समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो उसमें से आपको कुछ चीज समझ में। मैंने ये शब्द पहले भी यूज किया। What do you understand by the word analogy? बोलो। They use a substitute or an example, like a substitute, like to explain something. Yes, तो मैंने क्या किया था? खिचड़ी was a religion. खिचड़ी को रिलीजन से कंपेयर किया था, या क्रिकेट को बेसबॉल। ये सुनो, तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स को। आई विल कंपेयर टू अ ट्रैफिक सिग्नल। आई विल कंपेयर टू अ ट्रैफिक सिग्नल। लेट्स टेक 3 सिनेरियोज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ये वाला सुना है मेरा आर्गुमेंट पहले? अभी भी फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। 3 सिनेरियोज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। एक गांव में, एक थोड़े से टाउन में, ठीक शहर में, और एक बड़े शहर में। 3 तरह की जगह ट्रैफिक सिग्नल। गांव में क्या होता है? गांव में चौराया, ट्रैफिक सिग्नल कहां पे लगता है बच्चों? चौराहे। यहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, फिर कोई इधर से आता है, फिर उसको लेफ्ट जाना है या सीधा जाना है या राइट जाना है। यू कैन गो इन 4 डायरेक्शंस। तो गांव में जो चौराहा है वहां पे क्या ट्रैफिक सिग्नल होता है? नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं होता। वहां पे क्या होता है? वहां पे गाड़ी आती है, अपने आप से चलती है। वहां पे आपको कुछ भी करने की। एक टाउन में, जैसे अपन यहाँ पे खारघर की बात करें, खारघर में अंदर क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, जैसे इधर यहाँ पे बना रखा है हमने, क्या बना दिया उधर? राउंड अबाउट बना दिया और डिवाइडर्स बना दिए। तो लेफ्ट राइट डिवाइडर्स बना दिए। गांव में तो शायद लेफ्ट राइट डिवाइडर्स भी नहीं होते और कुछ भी नहीं होता। ये सुनो, लोग बाग आते हैं, लोग बाग चले जाते हैं। टाउन में आपने क्या कर दिया? थोड़ा सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। लेफ्ट राइट डिवाइडर्स बना दिए। लेफ्ट वाला आदमी लेफ्ट से जाएगा, राइट वाला आदमी ये सुनो, और राउंड अबाउट्स बना दिए, तो आदमी अपने आप चले जाते हैं, कोई दिक्कत। बड़े शहर में क्या करते हो? बड़े बड़े सिग्नल्स लगाते हो, ट्रैफिक पुलिस को भी खड़ा करते हो, तो डिवाइडर्स तो बनाते ही हो, सब कुछ बनाते हो। वो सब करने के बावजूद किसको खड़ा करते हो? ट्रैफिक कॉप्स को भी खड़ा करते हो और गाड़ियों को। अब अगर वो बड़े शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा तो क्या होगा? जाम, ट्रैफिक जाम। तो ये जाम कैसा जाम होगा? ये यहां से आया, ये यहां से आया, और ये दोनों जन ऐसे आगे आमने सामने खड़े हो जाएंगे। ये खुद पार्टिसिपेंट्स इस जाम को ठीक कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट, ये खुद पार्टिसिपेंट्स इस जाम को ठीक कर सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा मेरे को आगे जाना है, मैं बोलूंगा मेरे को आगे जाना है, तू पीछे हो, तू पीछे हो, तू पीछे हो। मैं क्यों पीछे हूं? मैं क्यों पीछे हूं? कैन द ट्रैफिक सिग्नल, उस टाइम पे अगर वो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाए, कैन द एंटायर जंक्शन बी कंप्लीटली जैम?
और फिर इसको ठीक कैसे करेंगे? पार्टिसिपेंट्स तो इसको ठीक, तो कहीं ना कहीं कोई एक आदमी आएगा जो जिसकी सब सुनेंगे। यार तो तू थोड़ा सा पीछे कहीं खड़ा रहे भाई, इसको जाने दो। ये बोले इसको क्यों जाने दे, चुप बोला हूं तेरे को, जाओ इसको थोड़ा, अच्छा बस रुक जाओ, 2 जन निकले, अब तू इधर जा। क्या ये अपनी अक्ल से सब लोगों को कंट्रोल करेगा तो ये हो सकेगा? और फिर एक बार उसने मशक्कत करके सबको यूं कर दिया और अब यहाँ पे खड़ा हो गया, चलो तुम जाओ, रुक जाओ, अब तुम जाओ, क्या ये ऐसे चलता रहेगा? हाँ या ना? Let's compare this traffic signal to economics. Let's compare this traffic signal to economics is about, let me now write down and make you understand. Economics is about management of scarce resources. Let's write down. Economics is about management of scarce resources. Economics, जैसे अपन ने बोला, politics is not about government, it is about government, but अपन ने core समझा, it is resolution of human conflicts in a peaceful manner. तो अपन को सब समझ में आ जाता है, government भी आ जाती है, policies भी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है, because all of them are resolving human conflicts, yes or no? तो ऐसे ही economics क्या कर रही है? Managing. Now let's try to understand एक एक करके ये शब्द मैनेजमेंट को समझेंगे, स्केयर्स को समझेंगे और रिसोर्सेस को समझेंगे, और अपन इनका इंडिविजुअल मीनिंग समझेंगे। मैनेजमेंट समझेंगे, स्केयर्स समझेंगे और रिसोर्सेस समझेंगे। मैनेजमेंट क्या है? कंट्रोलिंग। अब सबसे पहले इनमें से हम सबसे पहले स्केयर्स को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, व्हाट इज स्केयर्स? जिसकी कमी है। तो इकोनॉमिक्स इसको मैनेज करता है, उन्हीं रिसोर्सेस को जो रिसोर्सेस क्या है? which fulfill our needs, anything that fulfill human needs. These resources could be, आपने पहले चैप्टर में पढ़े, सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पढ़ने की कोशिश करोगे। These will be natural resources, then human made resources. तो आपकी इकोनॉमिक्स इसको 3 तरीके से क्लासिफाई करती है। Natural resources, man made resources, and humans themselves are human resources. ये क्या रिसोर्स है? क्या ये मेरे लिए रिसोर्स है क्या? Yes, sir. It's helping me to write. क्या ये bench, is it a resource for me? Yes. Is TV a resource for me? Yes. Is this land, is building, is it a resource? Yes. Air, is this a resource? Yes. It's a natural resource. Pani, is this a resource? Natural resource. Man, as a teacher, am I a resource for you? Yes. Human resource. Right? अब let's try to understand. आज से कुछ साल पहले या अभी मैं सांस ले रहा हूं. Does the government tax me on my air? No. Because air is not a. Yes. देखिए जैसे जैसे पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया है, do you think दिल्ली में क्लीन एयर के ऊपर टैक्स होना चालू हो जाएगा? आया ना? Yes. But sir, the oxygenated cans ऐसे सेल होते हैं ना? तो मतलब वही ना, तो वही तो ना। अरे आज से, अरे गाइस तुम लोग के टाइम भी छोड़, मतलब तुम लोग तो, मतलब मेरे टाइम में ही आज से 25 साल पहले ये पानी की बोतल, कोई बोलता था कि बोतल में पानी मिलेगा, तो हम लोग बोलते थे पानी में बोतल में मिलता है क्या? अब क्या ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर पानी कैसे मिलता है? करेक्ट? और आपके घरों में जो पानी आता है उसका पैसा लगता है? कुछ नहीं था, पानी लो यार, नदी में से जाके पानी लेके आ जाओ। पानी वॉज वेरी अबेंडेंटली अवेलेबल, कहीं से भी जाके लेके आ जाओ।
आपको नगर में मैं ना मेरे नाना जी के साथ अजमेर में मेरा मेरा ननियाल वाज इन अजमेर, नाना जी अजमेर के थे, तो जब हम अजमेर शहर में ऐसे बच्चे उनके साथ घूमते थे तो जगह जगह चौराहे पे क्या लगे हुए रहते थे, पानी के प्याऊ लगे रहते थे, और ऐसे किसी को कुछ पैसे नहीं देने पड़ते थे, जम करके मुंह करो, होल्ड करो और पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो पानी वाज अ abundant resource. Now is pani an abundant resource? It's managed. गवर्नमेंट मैनेज करती है उसको। आपके घर में पानी, अभी अपने घर में यहाँ पे वो सिर्फ 2 घंटे पानी देते हैं, उसके ऊपर पैसे लगते हैं, टैक्स लगता है, ये सुनो। तो आप कौन से रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो? Are you understanding this? So did you understand the meaning of the word resource? Yes. Did you understand the meaning of? And did you understand the meaning of word management? अब आपकी भाई आपको बहुत सारे आप कोई अभी गेहूं इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, गेहूं इज अ फूड ग्रेन, इज अ रिसोर्स, इज इट अ स्कैर्स रिसोर्स? Yes. तो गो Yes. गेहूं इज इट अ स्कैर्स रिसोर्स? तो क्या इसको मैनेज करना पड़ेगा? अभी यूक्रेन का वॉर हो गया, वहां से गेहूं आना बंद हो गया, और जो लोग दुनिया के लोग इंडिया से गेहूं खरीदने लग गए, तो इंडिया ने क्या किया? बैन कर दिया वीट एक्सपोर्ट। दिस इज वेयर समबडी इज ओके, इसको बंद करो, इस पे टैक्स ज्यादा लगाओ, इस पे टैक्स कम लगाओ, तो ही इज नॉट, मतलब इज इट रिलेटेड टू फाइनेंस? यस, इट्स रिलेटेड टू फाइनेंस, बिकॉज रिसोर्स कहीं ना कहीं स्केर्स होएगा तो उसका पैसा होएगा। आप ऑयल को कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल कैसे कर रहे हो? Price बढ़ा के गाना। कुछ तरीकों से कंट्रोल कर रहे हो, तो वो सारे कंट्रोल्स आर नथिंग बट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? हाँ? So have you understood? चलो very quickly let's write it down. Economics is all about management of scarce resources. Management is controlling activities like export, production, buying, selling. Yes or no? Taxes, etc. Is that right? And what is scarce? Not available in abundance. Is solar energy abundantly available or not abundantly available? तो अभी सोलर एनर्जी के ऊपर किसी की कोई टैक्स नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। Is there somebody bothering that? आपकी मर्जी, जो भी आप करो, करेक्ट? चलो नेक्स्ट, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर something that fulfill the need of humans. हाँ है ना? कितने तरह के रिसोर्सेज हैं? 3 types of resources. Which are these 3 types of resources? ये सब मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये सब आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। Yes or no? Natural resources, artificial or man-made resources. Yes or no? Man-made. और तीसरा कौन सा है? Humans themselves as a resource. So is everybody understood this introduction? What definition समझ में आ गया? हाँ? अच्छा, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? वो जो ट्रैफिक सिग्नल है, वो ट्रैफिक सिग्नल अपने आप से मैनेज नहीं होगा। पार्टिसिपेंट्स के ऊपर छोड़ देंगे तो वो जाम होगा। तो जाम इतना गंदा जाम होगा कि कोई पार्टिसिपेंट कहीं अपनी जगह
चाह के भी पहुंच नहीं पाए। जैसे पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया, वो ट्रैफिक सिग्नल पे वो जाम होने वाला है वो, और कभी बहुत गंदा डेडलॉक होने वाला है, ये सुनो, और वो डेडलॉक हो जाएगा, सपोज आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ, कैसी फीलिंग आएगी आपको? क्या बेवकूफ है यार। So you understand Pakistan में those people have gone into a economic crisis. They've gone into a very bad traffic signal jam. जहां पे मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, वहां पे कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, उसका बेमतलब से वो सब कुछ बंद हो गया, मालूम पड़ा यार कल पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसने सब अच्छी पढ़ाई करी, अपना घर बनाया है, सब कुछ है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, मालूम पड़ा अभी बीच में 12 घंटे लाइट नहीं आई। Will you be very irritated? Are you understanding this? Is economics, जितनी political science important है, is economics equally important? Yes. हाँ, अच्छा, इकोनॉमिक्स अगर ढंग से मैनेज नहीं होगी तो will it lead to conflicts in politics? तो देखो hand in hand, देखो hand in hand. do you need very brilliant people in economics also? Yes. मैं सच्ची में बच्चों को इसी की वजह से मैं ये दो चैप्टर्स दो टॉपिक्स पढ़ाने आता हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, where I really want to inspire people in learning and understanding. Again, they are more beautiful than engineering. The problem with engineering is it's boring. What is boring? Things do not change, dynamic. आपने एक सोल्यूशन निकाला, वो हमेशा वो सोल्यूशन रहेगा। हाँ, there is lot more to explore, वो बात अलग। तो कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैंने बोल दिया बोरिंग है तो बोरिंग। Elon Musk has changed things differently. उन्होंने इंजीनियरिंग के मार्वल्स को इतना आगे तक ले गए हैं कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। Correct? So there is lot which has been improved. So चलो, ये इधर तक समझ में आया क्या बच्चों? Why are we studying वो भी समझ में आ गया? चलिए, now we have the last chapter, the second chapter, sectors of Indian economy. चलो, अब we are coming to the chapter. Now we are done with the non-NCERT वाला portion, पूरा खत्म हो गया अपना. So we will now start with sectors of Indian economy. कोई मेरे को टेक्स्ट बुक देगा क्या? इकोनॉमिक्स की कोई लाया है क्या? मेरी वॉल्यूम हो तो मेरी वॉल्यूम दे दो। हाँ, ये तो है ना वॉल्यूम तो है, मेरे को वॉल्यूम दे दो। चलो, लेट्स राइट डाउन। पहले हमको क्या करना है? अच्छा, आप लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया है? ओके, चलो, ओके, ठीक है, तो मैं उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा, एंड देन वी विल डू दी वॉल्यूम के केस स्टडीज कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, एंड वी वुड डू दैट। ठीक है, पहले मैं देखूंगा सही क्या है। इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स, जीडीपी क्या होता है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, let's write down the agenda first. We have half an hour, so exact half an hour from here. So let's write down the agenda first. Sectors of Indian economy में अपन पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद हम प्राइमरली इनका जीडीपी एनालिसिस करेंगे।
Then we will study unemployment. And then we will study lastly organized and unorganized sector holding. And we will also study private and public. चलिए. Economic activities. जैसे पॉलिटिकल साइंस बहुत पुरानी है, हाउ ओल्ड इज इकोनॉमिक्स? बताओ, गिव मी, सोचे से बिना आंसर मत दो, बहुत गुस्सा होऊंगा, थोड़ा सोचो फिर बताओ. इट इज मैनेजमेंट ऑफ नॉट ऑल रिसोर्सेस. चलो मैंने हिंट दे दी, इट्स मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस. सो हाउ ओल्ड इज इकोनॉमिक्स? More than 500 or 1,000. The civilization started to gain population. कब चालू हुई? When resources started becoming scarce. Yes. Correct. When resources started depleting. But necessarily scarcity. Enough population but see the scarce. हाँ तो immediately चालू नहीं हुई ना, because अर्थ पे रिसोर्सेज की कोई कमी. When resources started depleting. देखो वो जो ट्रैफिक सिग्नल है वो गांव में आपको कुछ भी करने की मैनेज करने की जरूरत. इट्स नॉट लाइक पॉलिटिकल साइंस जहां पे झगड़े होंगे ही होंगे. इकोनॉमिक्स में ऐसा नॉट अ वेरी ओल्ड साइंस. इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड साइंस. गड़बड़ कब होना चालू हुई? जब रिसोर्सेज वाकई में डिप्लीट होने लगे और लोग एक दूसरे से रिसोर्सेज के लेके But every time some resources in the near vicinity, like the transport or the vast near vicinity of the resource, they are always managing some. तो भी गड़बड़ चालू हुई. लेकिन गड़बड़ चालू होने में ऑब्वियसली क्या मिलियंस ऑफ इयर्स लगे. सिविलाइजेशन होने के बाद भी मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स से तो ये पुरानी नहीं है. पॉलिटिकल साइंस जैसी नहीं है. सिविलाइजेशन में भी शुरू में नहीं थी, बट जैसे ही चालू हुई सिविलाइजेशन, एक शहर बसा तो उस शहर में धीरे धीरे कुछ रिसोर्सेस कम होने लगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, शुरू में छोटा मोटा अरेंजमेंट कर लिया तो चीजें क्या चलने लगी. यार सर्कल बना दो, लेफ्ट राइट बना दो, कुछ कानून बना दो, तुम लेफ्ट में चलो, तुम राइट में चलो. करेक्ट. तुम ऐसे करो जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे करते हो, तो आपने बना दिया कि ये करो ये करो ये करो, तो चीजें चलने लगी. बेसिक इकोनॉमी की प्रॉब्लम एक्चुअली कब चालू हुई? This is a very recent phenomena of पिछले 200 साल. 1800 1900 का समय, जब रैपिड डेवलपमेंट होने लगा तो रिसोर्सेज बहुत बड़ी रेट पे डिप्लीट होने लगे और स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा चालू होने लगी. Guys, economics की I am a master's in economics. I'm a master's in economics. मैं डबल मास्टर्स हूँ, तो मैं सेकंड मास्टर्स हो रहा हूँ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. तो अगर इकोनॉमिक्स का आपको आई गिव यू एन ओवरव्यू. जैसे अभी द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट.
What state is the world going through? We just went through that COVID. And COVID, was it affected in all the entire world? बड़ा difficult state था ये. इसमें क्या हुआ? इसमें क्या गड़बड़ हुई? इसमें सब जगह शटडाउन हो गया कंट्रीज का. इमेजिन अ ट्रैफिक सिग्नल जहां पे एक सड़क के बीच में एक ट्रक खराब हो गया. और उसमें लोगों को आना जाना बंद कर दिया. अब कंट्रीज बंद होती चली जा रही हैं. चाइना ने बंद कर दिया, इंडिया ने लॉकडाउन लगा दिया, मतलब सब बंद. Yes or no? It's like analogy उस तरह से समझो कि एक सड़क पे ट्रक अटक गया, खराब हो गया. चलो प्लीज कुछ भी कर लो. जब तक एक क्रेन नहीं लेके आओगे और उस ट्रक को ऐसे ऊपर उठा के नहीं मूव करोगे. Is it a very bad logjam? Yes. तो क्या the world has witnessed such logjams in the last 2 years, 3 years? कोविड की वजह से अलग-अलग कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ. Has the all countries economy have gone through a very bad phase? Yes. तब अब क्या आ गया उसके बाद? यूक्रेन वॉर आ गया. जहां पे यूएस ने इतनी सारी कंट्रीज को बोला है तुम यूक्रेन से ये नहीं खरीदो. मालूम पड़ा सारे वापस सप्लाई चेन्स टूट गई. जैसे अभी ये हो रहा है ऐसे 1929 में, अगेन लेट्स स्टॉप दिस एंड ये एक चीज देखते हैं. अरे क्यों गया इसको? Online students, let's stop this. Let's all of us see this. ये सब नॉन एनसीईआरटी है. क्या पढ़ रहे हैं अपन? थैंक यू. चलो. So the Great Depression was a severe worldwide economic depression. Is everybody with me on this? Online class भी पढ़ रही है, देख रही है? Yes, sir. Between 1929 and 1939, it began after a major fall in stock prices in the United States. And चीजें बहुत खराब होती चली गई. Now, मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, मैं क्यों समझा रहा हूं? Right now, we are in a similar state of affairs, where the entire world has gone through a very bad economic depression. 2 साल फिर यूक्रेन वॉर हो गया. तो मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स को एक्चुअली दुनिया पहली बार कब पढ़ना चालू किया था सीरियस सब्जेक्ट जैसा? 100 साल पहले. उससे पहले वर पीपल स्टडीइंग इकोनॉमिक्स? नॉट सीरियस. लोगों को लगता था इसकी जरूरत अरे चल जाएगा यार, वो ट्रैफिक सिग्नल को मैनेज करने की अपने आप हो जाता है. 10 साल का बहुत गंदा लॉकजाम आया. इतना गंदा लॉकजाम आया था, अब इसके बारे में अगर आप चाहो तो the 1929 fell by 15% और हालत बहुत खराब हो गई. Are you all understanding this? तो इसकी वजह से अब गाइस अभी कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं घुसे. चलिए अब मैं इसको बंद करता हूं सो दैट यू गाइस आर आउट ऑफ दिस. इसको ही देखते रहोगे आप. इसको कैसे बंद करेंगे आप? Escape. Stop sharing. Sharing. Advanced.
कंट्रीज इसमें नहीं घुसे, तो क्या दिस टाइम हैज द वर्ल्ड, आपने अगर आप ध्यान देते हो और करते हो, किसी को मालूम है क्या कल आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे. A big event happened a couple of days back in the US. क्या हुआ? बोलो, आप ट्रैक करते हो ना? What happened in the US? चलो इधर क्लास में कोई बताएगा, यूएस में इकोनॉमिक डिसीजन एक आया था. What is economics? Economics is about मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में चलो लेट्स ये वापस अपन जाते हैं, सो दैट यू गाइस, तो अपन वापस जाते हैं. 2 दिन पहले फेड ने क्या अनाउंस किया था? डू यू नो हुज फेड? हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोई भी कुछ बोलता नहीं है, सब चुप है. ये अनम्यूट करो ऑनलाइन वाले, और इधर भी चलो बोलो. शेयर. इकोनॉमिक डिसीजन अभी इंडिया में भी हुआ और फेडरल रिजर्व ने भी लिया. हुज फेडरल रिजर्व? जैसे इंडिया में फेडरल रिजर्व का कौन काउंटर पार्ट है? अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इंडिया में, अमेरिका में क्या है? बोलो. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई. चलो, तो अब अपन सबसे पहले फेड रेट हाइक. चलो दिख रहा है क्या? ये पढ़ रहे हो क्या सब लोग? क्या? चलो समर्थ ये पढ़ के बताओ जो ये मैंने हाईलाइट किया है. Fed hikes rate by 75 basis points, the biggest increase since 1994. अमेरिकन फेडरल बोर्ड ने यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कितनी बढ़ा दी? 75 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.75%. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट्स? बैंक की बोरोइंग रेट, बैंक की फ्रॉम द फेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्यों बढ़ा रहा है बैंक की बोरोइंग रेट? अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में भी लेट्स अंडरस्टैंड, मतलब ये मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. देखो, लेट्स अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड देन यू विल अप्रिशिएट. और मेरे ख्याल से मैं अभी ये चैप्टर नहीं चालू करके आपको ये पर्सपेक्टिव दूंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड. स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं तब क्या होता है? स्कैरसिटी होती है तो क्या होता है? प्राइस बढ़ती है. प्राइस, सब लोग पागल जैसे मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए. अच्छा, डिमांड ज्यादा है मतलब उसके पास क्या है? आदमी के पास पैसा है, उसके पास देयर इज मोर मनी एंड लेस रिसोर्सेज. मोर मनी इज चेजिंग लेस कमोडिटीज. हाँ या ना? तो आप ट्रैफिक सिग्नल को मैनेज कर रहे हो, आपको दिख रहा है इधर से बहुत ट्रैफिक आ रहा है, तो आप क्या करते हो कि भैया इधर ज्यादा देर छोड़ो यार, इसको इधर कम है तो इधर कम देर छोड़ो, इसको ज्यादा देर छोड़ो, रोड चौड़ी करो, इसको जाने दो, इसको जाने दो, जाने दो. ये सुनो, तो अब ये फेडरेट ने इसने क्या किया? नाउ 1929 से 1939 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा चीजें सीखी, कि टूल सीखे कि कैसे मैनेज करना चाहिए. अगर नहीं मैनेज करेंगे तो ये तो एक उसमें घुस जाएगा. किसमें घुस जाएगा? ट्रैफिक जैम में घुस जाएगा. इसलिए उसको अभी से ही ठीक करो. व्हाट इज द वे टू कंट्रोल ये वाली स्कैर्स रिसोर्सेज में? क्या होएगा आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके यहाँ पे गड़बड़ हो रही है? सबसे पहला इंडिकेशन क्या आएगा आपकी इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. क्या इंडिकेशन आएगा? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज बढ़ रही है. कल को आज व्हाट इज द प्रेजेंट इन्फ्लेशन इन यूएस? चलो लेट्स रीड अबाउट इन्फ्लेशन. सो लेट्स रीड अबाउट इन्फ्लेशन. Inflation in USA.
What is inflation in USA? Why is inflation in the US so high? Do you realize? Inflation in the USA is, US makes biggest interest rate rise in almost 30 years. US में, what is the inflation rate in the US? Inflation in the US right now is standing at around 8%. कितने पे खड़ा है? 8%. Where traditionally it was only 2 to 3%. मतलब अगर कोई किसी की प्राइस 100 रुपए है तो एक साल बाद यूएस में कितनी हो जाती थी? 102 रुपए. 2% मतलब 102 रुपए हो जाती थी एक साल बाद. अभी एक साल बाद कितनी हो रही है वो? 108 रुपए हो रही है. Are you understanding this? तो जैसे इंडिया में अभी इन्फ्लेशन कितना है? 6%. इंडिया में इन्फ्लेशन इज अराउंड 6%. Traditionally, it has been seen अगर इकोनॉमी में 2% इन्फ्लेशन रहता है, that is good. ये सब कहां से सीखा बच्चों? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में से. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में से. तो ये जो फेड रेट हाइक हो रही है, इज दिस नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस? तो हमने अभी से मैनेज करना. अगर हम ढंग से सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे तो हो सकता है दैट वी वुड नॉट एंटर अ डिप्रेशन जैसे 1929 में घुस गए. इकोनॉमिक डिप्रेशन में घुस गए तो सब लोग, मतलब पिछले इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहाल हुई थी? तो क्या इंडिया भी कर रहा है क्या? चलो लेट्स अंडरस्टैंड. इंडिया में कितनी, लेट्स इसमें how many times has Indian Reserve Bank in India has raised interest rates? देखो इंडिया ने भी रेज करी क्या? The Reserve Bank of India unexpectedly raised its key repo rate by 40 basis points. हमारे यहाँ पे थ्रेट कम है तो हमने थोड़ा सा बढ़ाया है. But did we also raise it? और हमने भी 2 बार बढ़ा दी है. देखो इंडियन सेंट्रल बैंक ने 2 साल बाद बढ़ाई है ये रेट. कब बढ़ाई है? हमने मई में बढ़ाई. Is this nothing but management of scarce resources? हमको दिख रहा है रिसोर्सेस स्केर्स तो हम उसके ऊपर कदम उठाना चालू. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो अब ये पढ़ा अपन ने, ये आपको समझ में आया. तो मैं जो बोल रहा था, इकोनॉमिक्स कब से पढ़ रहे हैं बच्चों? 100 साल 200 साल से ज्यादा से हम पढ़ नहीं रहे. इकोनॉमिक्स या स्टडी ओनली सिंस. तो अब जब ये पढ़ना चालू किया, इकोनॉमिक्स को हमने पढ़ना चालू, तो आर वी डूइंग इफेक्टिव कंट्रोल? यस, कुछ कंट्रीज बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे. यूएस का फंडामेंटल रिकॉर्ड रहा है वो ग्रेट डिप्रेशन में घुसने के बाद. ग्रेट घुसने के बाद, वो भी मेरे को अगर ग्राफ मिलेगा तो मैं गूगल पे लाने की कोशिश करूंगा और आपको, बट अभी तो नहीं. अभी मैं थोड़ा सा यूएस में गाइस ट्रेडिशनली देखा गया है कि एक अगर इकोनॉमी का मैं जीडीपी की बात ट्रैक करूंगा तो जीडीपी 1929 में ऐसे कट करके नीचे चले और फिर ये ऊपर आया. ये क्या है बच्चों? ये डिप्रेशन. ये क्या है? तो यूएस का अगर जीडीपी का ग्राफ देखेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, चलो दिखाते हैं, अभी अपन देखते भी हैं. तो यूएस के ग्राफ को क्या किया है इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 100 सालों में. कितने सालों में? 100 सालों में पहले ना ग्राफ ऐसे नीचे भागता और फिर ऊपर आता था, फिर एक डिप्रेशन में घुसा, फिर ऊपर आता था, फिर एक डिप्रेशन में घुसा. अब इन्होंने कुछ सालों में, जो इकोनॉमिस्ट हैं यूएस, उन्होंने यूएस की इकोनॉमी को ये ऐसे ट्रफ्स फॉर्म हो रहे हैं, इनको ऐसा कर दिया. ये जो ट्रफ्स हैं इनकी डेप्थ को बहुत कम. ट्रफ्स हो रहे, थोड़ा सा घुसता है और उतने से में ही उसको ऊपर उठा देते हैं. तो ये ऐसे जो बम्पी राइड होती थी, उस बम्पी राइड को खत्म करके उसको बहुत छोटी सी ऐसी राइड, वो मैं दिखाता हूं वो ग्राफ आपको. एंड दिस इज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इज दिस अ वेरी कवेटेड फील्ड?
Yes. बहुत सारे लोग घुसते हैं इसके अंदर, where they study this and it's very difficult. चलो ये अपन देखते हैं and today we will do this, मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करते हैं, शेयर स्क्रीन करते हैं, बेसिक ये US GDP graph for last 100 years. This is something which I'm talking about. देखो बच्चों, आगे हाँ इधर this ये वाला देखो गाइस, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, if all of you will appreciate and understand, this is where the US went through 2 cycles. ये समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? हाँ, ये था इतना बड़ा डिप्रेशन जो आया था, दिख रहा है ये डिप्रेशन, उसके बाद वापस यूएस एक डिप्रेशन में घुस गया था इधर, ये थोड़ा छोटा हुआ, उसके बाद से यूएस, ये भैया तो बंद हो जाना यार, ये भी बंद हो, ये भी हाई हो, अब इसको कैसे बंद करेंगे? अब ये हाँ समझ में आया ये, और उसके बाद से ये देखो कहीं पे भी ये डिप्रेशन बहुत Deep नहीं था. it's not becoming steep. Have they become very good economic managers? Yes. Do you want to become this in the want to do this in life? Are you understanding? कौन कर रहे हैं ये चीज, कौन कर रहे हैं? Let's see some figures. And आज बस हो गया है, we are now ending the class, so I would take the liberty of doing this. Who's been the most successful economist in the US? Let me give you the name of that gentleman. He is the gentleman. Former chair of the Federal Reserve Chief, Alan Greenspan. इन्होंने what he gave the world is, he gave the world the tool कि कैसे एक इकोनॉमी को आप मैनेज कर सकते हैं. And इन्होंने, he was the longest serving federal chief of US. Alan Greenspan के बारे में अगर पढ़ेंगे, so he was the 13th chair of the Federal Reserve, served from, देखो इनका देखना कहां से कहां तक सर्व किया है, शायद इसमें आए 10 साल सर्व किया. कितने साल सर्व किया? 10 साल. उससे पहले he is the one who is the architect of US economy, जिन्होंने ये चीज सिखाई कि US इसमें नहीं जाना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं घुसना चाहिए. अब जरूरी नहीं है, अब उन्होंने कुछ सीखा, जरूरी नहीं है अब अभी भी वो कंटिन्यू. There are problems, and today the world is facing real big challenges. Has everybody understood what is economics? अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Let me give you just last 2 minutes. Let me give you the perspective. तो हम क्या करेंगे? चलो इसको क्लोज डाउन करते हैं. हम क्या करेंगे? स्केल करना पड़ेगा, फिर वो स्टॉप आएगा. हाँ, let me give you the perspective बच्चों. What really we will be doing is, हम इकोनॉमिक्स को क्लास में आपकी इसमें हम जैसे ये वाले चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम कि भाई हमको मैनेज करना है, तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटीज को मैनेज करना है? तो सबसे पहले हम
एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे और हम पढ़ेंगे कि आदमी करता क्या है। तो आपके चैप्टर में सिखाया आपको कि यार आदमी 3 तरह की एक्टिविटी करता है। प्राइमरी एक्टिविटी करता है, वेयर ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन वर्क ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिविटी। ह्यूमंस वर्क ऑन artificial resources, it's called as secondary activity. Humans work on themselves, tertiary activities. तो अब ये एक्टिविटीज में क्या होता है, तो इस एक्टिविटीज में हमको मालूम पड़ा कि प्राइमरी एक्टिविटी में वैल्यू ऐड कम होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में वैल्यू ऐड ज्यादा होता है, और थर्ड में वैल्यू ऐड सबसे ज्यादा होता है। तो उससे हमको कुछ समझ में आएगा कि किस एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करना है। तो दिस इज व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर वी विल आल्सो स्टडी सेकंड जीडीपी एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जीडीपी एनालिसिस में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक एक्टिविटी का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना होगा, वैल्यू एडिशन, कि पहली एक्टिविटी में वैल्यू कंट्रीब्यूशन इज लेस, सेकंड में थोड़ा ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा। वी विल अंडरस्टैंड दैट वैल्यू कंट्रीब्यूशन। अच्छा, प्लस हम इनकी तीनों की इंटरडिपेंडेंस पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी मतलब अपन ऐसा कम है तो मतलब तीसरी एक्टिविटी कंप्लीट करो, ऐसा भी नहीं कर। सो वी विल स्टडी दिस। देन वी विल आल्सो स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हर एक इकोनॉमी में ह्यूमंस का जो नेचर है, नेचुरल स्वभाव इज he doesn't want to work. He's lazy. So अगर उसको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा तो ऐसे अपन ने उसमें देखा ना, पॉलिटिक्स में क्या देखा अपन, नेचुरल स्वभाव है तू मुझे मार मैं तुझे मारूं। साला कुछ भी गड़बड़ होएगी सबसे पहले जाके मैं पत्थर उठा के मार रहा हूं। That's what happened. अभी मोदी जी ने कल अनाउंस किया कि हम आर्मी में 4 साल के लिए भर्ती करेंगे लोगों को। आज अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो क्या हो रहा है न्यूज में, सब जगह पथराव हो रहा है, सब जगह रोग हो रहा है। क्यों 4 साल? क्यों हमको पूरे टाइम क्यों नहीं देते आप आर्मी में? और यार तुमको कुछ दे रहे हैं, तुमको कुछ मतलब हर चीज में तुमको सब कुछ चाहिए। तो नेचुरल टेंडेंसी इज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग, इसका बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा एक इकोनॉमी। क्या हमेशा कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे? यस, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको सालों को काम ही, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो व्हाट विल दे डू? वो लोग कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेंगे, बिकॉज दे विल बिकम सोशल डेविल्स इन द सोसाइटी। विल दे बिकम सोशल डेविल्स इन द सोसाइटी? तो उसको कैसे हैंडल करना है वो पढ़ेंगे। लास्टली आपकी टेक्स्ट बुक में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सेक्टर्स इसमें काम करते हैं, यू हैव डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट गवर्नमेंट, सबके अपने अपने चैलेंजेस, हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जिससे हमको अगर वो चीजें समझ में आएंगी तो हम ये इसको बेटर मैनेज। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द लेक्चर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.